वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप बेटा? आप सभी वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासरूम। सो वी आर स्टडिंग द चैप्टर 4 विच इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट। चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ें। Okay, so children, we are discussing the chapter Human Development. When I talk about the human development, so many things I had discussed with you. I discussed with you about what is the meaning of development, what are the 3 processes involved in the human development. Then I discussed with you the assumptions of the human development. The difference between growth and development. Now today we move forward to the syllabus. So you are going to study about the determinants of the factors influencing development. Factors influencing development. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। आज हम ये पढ़ेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, व्हाट आर दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। चिल्ड्रन, जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं या हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, द 2 फैक्टर्स ऑलवेज प्लेड अ रोल एंड दैट इज द one is the biological factor which is also known as heredity. Second is the environmental factor. So there are 2 factors which determine the human development. One is biological, which is heredity, and second is the person's environment, in which the child is rearing up, in which the child is nurturing. Understand? Okay. So one is the heredity factor and one is the environment factor. The 2 factors are there which determine the human development. Heredity. Heredity, whenever we talk about the heredity, we are talking about the genes. The genes which transmit from one generation to the next. And by the genes, the several kind of characteristics develop in the person, in the child. That genes are responsible. But the research have been done which has proven that not only the heredity and the biological factor is there for shaping the child personality and for determining the child's development. So biological or the genes are not only responsible for it. Right? Biological or genes are not only responsible for it. Biological heredity. हेरिडिटी की जब हम बात करते हैं या जीन्स ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 2 टर्म्स केम हियर, जेनोटाइप एंड फेनोटाइप.
genotype and phenotype. Genotype means when the genes are transmitted from their parents to the child, and phenotype is related to P4 physical characteristics also. When the child inherited their parents' attributes and the physical characteristics also, so that come under the phenotype. So there were two terms which are related to the biological factor determining human behavior: genotype and phenotype. So जब भी हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो हम जेनेटिक फैक्टर की भी बात करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर को आप हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर भी कह सकते हो। It is also known as the genetic factor, biological, heredity or genetic factor, genotype and phenotype. Environment, so मैंने अभी जस्ट बताया बेटा कि not only biological factor determine the person's human development कह लो, person's personality, the child's development, overall development, which we taught as holistic development. Understand? Okay, moving to the environmental factor. सिर्फ यही डिटरमाइन नहीं करते, ऐसा नहीं होता कि जैसा जीन्स ट्रांसफ़र हो रहा है, जीन्स का ऑल्दो प्लेड अ ग्रेट रोल, जीन्स का रोल आप डिनाई तो नहीं कर सकते हो, इसका रोल है, ठीक है, इसका रोल है नो डाउट। बट एनवायरमेंट ऑल्सो शेप, कभी कभी देखा गया है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट a child whose IQ is less by birth, okay, from genes, that child because their parents' IQs are average, they are average people, average IQ people, so their child will also born with that same IQ. But with the exposure of good enriched environment, एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक इनरिच्ड इन्वायरमेंट में चाइल्ड की एबिलिटी ग्रो करती है, उसकी IQ लेवल भी इन्हांस होती है। तो दैट इज़ द रोल ऑफ एनवायरमेंट। ये किस चीज़ का रोल है? एनवायरमेंट का रोल है। क्लियर? इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच कम अंडर द इन्वायरमेंट। So let's discuss about the environment. Firstly, I hope the biological determinant which influencing the personality is clear to you all, which is related to the genes. Okay, चलो environment को थोड़ा सा समझते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर के बाद हम जिस भी फैक्टर को पढ़ रहे हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट सबसे पहले ये आप लिख लो बेटा, ओवरऑल इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, इनरिच्ड फर्स्ट और सेकेंड इम्पॉवरिश्ड। enriched environment and impoverished environment.
टू टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इनरिच्ड और इम्पावरिस्ट। एनरिच्ड इन्वॉल्वमेंट वो होता है जहाँ पे द पर्सन इज गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द नेसेसरी थिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। Impoverished, where the child is not getting the appropriate things, impoverished environment है, ठीक है, लैकिंग है, कमी है, फाइन, ओके। सो यू कैन क्या क्या चीज़ें आएंगी इनरिच में? इनरिच इन्वायरमेंट इंक्लूड या पॉइंट्स में लिखेंगे इसे, इनरिच इन्वायरमेंट में आएगा गुड एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिले अगर बच्चे को, प्रॉपर स्कूलिंग, गुड की जगह क्वालिटी भी कर सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। गुड की जगह एजुकेशन तो सभी को मिलती हैं पर कैसी मिल रही है, पुअर क्वालिटी, गुड क्वालिटी एजुकेशन, प्रॉपर स्कूलिंग, रिच न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं बच्चे को, रिच न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर स्कूलिंग, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी एटमॉस्फेयर लिख सकते हो, हेल्दी एटमॉस्फेयर, घर का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए बच्चे का, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो जिस भी माहौल में रह रहा है वो हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हेल्दी और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। जहाँ जिस स्कूल में जाता है वहाँ का भी एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो, नॉट अ नेगेटिव, ठीक है। एजुकेशन उसको अच्छी दी जाए, स्कूलिंग अच्छी हो, रिच न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है, बेसिक नीड तो फुलफिल ही होनी चाहिए एट एनी हाउ, घर का जो कंडीशन है वो भी अच्छा हो, प्रॉपर रूम्स अवेलेबल हों, कंफर्ट अवेलेबल हो, वो भी इट ऑल्सो हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल। So, healthy atmosphere, positive rich nutrition, proper housing condition, housing condition सही होना चाहिए, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन पर ध्यान दिया जा रहा हो बच्चे का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं लिख रही हूँ, आई हैव रिटन हियर A B C D E F G, रूटीन मेडिकल चेकअप हो रहा है बच्चे का, रूटीन मेडिकल चेकअप, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनरिच्ड इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। सो इन्वायरमेंट टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इनरिच्ड और इम्पावरिश्ड। इनरिच्ड इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इफ़ इट इज़ अवेलेबल देयर वी कॉल दैट इन्वायरमेंट इनरिच्ड। हम कहेंगे कि वो इन्वायरमेंट कैसा है, वो इनरिच्ड इन्वायरमेंट है। आप इसे नोट डाउन करेंगे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स प्लीज़ अपने नोट्स में, मे बी एवरीथिंग इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे इम्पावरिश्ड इन्वायरमेंट। इम्पावरिश्ड ऑब्वियसली इट वाज टॉकिंग अबाउट द लैक और द डिवॉइड ऑफ दीज थिंग्स, जो चीज़ें इसमें हैं वो उसमें नहीं होंगी। इम्पावरिश्ड यानी बच्चे को वो फैसिलिटी, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो।
enriched environment के पार्ट। इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप लिख लेंगे, कहाँ तक आपने लिखा था, G पॉइंट लिखा था, ठीक है, H पॉइंट लिखेंगे। हाउसिंग कंडीशन कैसी है, बच्चा किस तरह के कंडीशन में रह रहा है, टाइप ऑफ फैमिली, लार्ज है, स्मॉल है, न्यूक्लियर है या जॉइंट है, किस तरीके की फैमिली है, किस तरीके की फैमिली में बच्चा रह रहा है, विच टाइप ऑफ फैमिली द चाइल्ड इज लिविंग, न्यूक्लियर और जॉइंट टाइप ऑफ फैमिली, हाउसिंग कंडीशन, पीयर ग्रुप इसका कैसा है, ये भी दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। पीयर ग्रुप्स जिसे आप एजमेट्स भी कह सकते हैं, जो उसके एजमेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं, ठीक है, एजमेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं, अंडरस्टैंड, वो कैसे हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, पीयर ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, अंडरस्टैंड। So it is clear. Now I should remove it. ये points भी आप सबने देख लिया होगा। So we are studying the topic factors influencing human development. कौन से ऐसे factors हैं? There are the two main factors which overall influence the human development. It is first the heredity, the person's heredity, and second is the person involvement. इन्वॉल्वमेंट की हम बात करते हैं तो सब चीज़ें आ जाती हैं, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट, सोशल इन्वॉल्वमेंट, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, कैसा है बच्चे का, ये ओवरऑल इफेक्ट करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कैसा है, इफ़ एनी काइंड ऑफ सपोर्ट आर देयर विद द चाइल्ड, कोई है जो उसे सपोर्ट करता है और एवरीबडी इज़ देयर ओनली जस्ट गिविंग देम द ऑर्डर्स टू फॉलो, तो ये चीज़ें हैं, कैसा इन्वॉल्वमेंट है। एम्पावरिस्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करें, इनरिच्ड इन्वॉल्वमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट का कैटेगरी है वो है एम्पावरिस्ट। एम्पावरिस्ट में क्या है, हर एक चीज़ों की कमी है। फर्स्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, खाना तो मिल जा रहा है पर जो फूड, कुछ ऐसे फूड हैं जो न्यूट्रिशियस हैं वो नहीं मिल रहा है। रोटी सब्जी मिल रही है पर न्यूट्रिशियस नहीं मिल रहे हैं, फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। देन इम्पावरिस्ट इन्वॉल्वमेंट का ये पार्ट है, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। नो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या स्कूलिंग कह लो, नो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्कूलिंग। तो उसमें कैसे, मतलब बच्चा ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कुछ है, ये बहुत मैटर करता है, बच्चा किस स्कूल में जा रहा है। ऐसे जगह जा रहा है जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिल्डिंग टूटी फूटी है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, या एक ही रूम है, देयर इज़ ओनली वन रूम, ठीक है, एक ही रूम है जिसमें द सो मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर, टीचर्स आर नॉट देयर, ओके, ओनली वन टीचर इज़ देयर हु इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द चाइल्ड। सो जबकि देयर वाज अ रूल ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली इन द junior session, in the nursery session, that there should be one teacher with the two child, दो बच्चे के साथ सिर्फ 8 टीचर हैं होंगे, not more than that one, ताकि so that that particular teacher only focus on the integrated and the holistic development of the child, otherwise how the teacher will see so many child, तो वो तो प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। सो स्कूलिंग का कुछ नहीं होता है, कोई क्वालिटी नहीं होती है। इम्पावरिश्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को ऐसे ही मे बी गवर्नमेंट में भेज देते हैं या आंगनबाड़ी जैसे स्कूल्स में भेज देते हैं, तो ये यानी बच्चा जो है, मान लीजिए सपोज बाय हेरिडिटी ही और शी वाज वेरी गुड,
बट नॉट गेटिंग अ प्रॉपर इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। उसके में एबिलिटीज़ है, सब है, बट उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे ग्रो करेगा? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन। ओके, so lack of nutritious food, no quality of education or schooling, then उनके पीयर रेट्स भी अच्छे नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ होम, ये भी इम्पावर्ड एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। घर का ही क्वालिटी भी नहीं सही है। जिस घर में बच्चा रह रहा है, देयर इज ओनली अगेन इन दिस होम ऑल्सो द सेम थिंग हैपन। द चाइल्ड इज लिविंग इन अ रूम विद अ नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे फैमिली मेम्बर के साथ बच्चा रह रहा है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ओके, सो इम्पावर्ड एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ एवरीथिंग इज डिवॉइड ऑफ एंड ओके, द चाइल्ड इज़ डिवॉइड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बच्चे को बहुत सी चीज़ों की कमी होती है इम्पावर्ड इन्वायरमेंट में। अच्छा स्कूल नहीं मिलता, अच्छा घर में इन्वायरमेंट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, नोबडी इज़ देयर टू हेल्प हिम इन हिज और हर होमवर्क। ओके, कोई भी उससे होमवर्क नहीं करा पा रहा है। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू हैव एनी अदर सोर्स ऑल्सो, लाइक दे कैन ज्वाइन द ट्यूशन और कोचिंग, वो भी नहीं कर सकते हैं। सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर विद दैट। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम उन्हें फेस करने पड़ते हैं। दीज आर द थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स आई हैव रिटन। और क्या हो सकता है? जो जो चीज़ें इम्पावर्ड एनवायरनमेंट में हैं वो जो चीज़ें, द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द एनरिच्ड एनवायरनमेंट that are not available in the impoverished environment, impoverished environment में available नहीं है। Okay, environment play a greater role in shaping the person's personality. You can definitely find out a difference between a child who is having nurturing or growing up in an enriched environment and a child who is growing up in an impoverished environment. There is a big difference between these children. बहुत ज़्यादा difference है, and that is why there is a differences in the child, there is a differences in the personality. पर्सनालिटी में डिफरेंस है, चाइल्ड में डिफरेंस होता है, एंड दे डिफर इन बोथ द ग्राउंड, एदर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल और एदर वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल। हर एक ग्राउंड पे वे लोग पीछे होते हैं, विच इज़ नॉट समवेयर गुड। ओके ओके, चलिए। So here children, we have completed this topic, factors influencing development. What are the factors which determine the human development? So we get to know that there were the two factors which determine the human development, and these factors are biological factor and the environmental factor. It is very elaborately given in your NCERT book. I just suggest you all to go through your book में आप पढ़ेंगे इसे, ठीक है? And whenever you find any doubt, up to this हमने पढ़ लिया, we are studying the human development chapter हमने start कर दिया, हम इसे पढ़ रहे हैं। Still if you find any doubt, आपको लगता है कोई doubt हो रहा है, तो you will discuss to me in the क्लासरूम। अंडरस्टैंड, आप मुझसे डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, क्लियर? सो I must say thank you so much for carefully observing this video and listening to me. Thank you children.